اس مہینے کا سٹار آف دا منتھ کون سا برج ہے؟ اس کی کیا ریزن کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا اس بات کا بھی شکریہ. آپ میرے بات کرتے درمیان میں بولتی نہیں ہیں تاکہ مجھے بولنا مکمل پڑے. نہیں، وہ ماشاءاللہ سے آپ اتنا بریفلی بتا رہے ہوتے ہیں سٹارز کے بارے میں، تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں اپنے کہ ان کا ہفتہ، ان کا پورا مہینہ کیسے گزرے گا، وہ ایزیلی جان سکیں. بالکل ڈائریکٹ ریڈنگ، ڈائریکٹ بات چیت. اور میں نہیں چاہتا آپ کا وقت ضائع ہو، کیونکہ آج کی ویڈیو اس حوالے سے اہم ہے کہ وہ خوش قسمت 5 بروج کون سے ہیں جن کو سن اب آ رہا ہے بالکل جناب کینسر میں. اب ہوگا کیا؟ سن سورج کی انرجی آپ جانتے ہیں کہ جب سن کینسر میں آئے گا تو 21 جون سے 22 جولائی ایک بڑا راج یوگ لگتا ہے، ایک بڑی انرجی آتی ہے. اور جوپیٹر کا بھی بالکل اس وقت کنجکشن ہو رہا ہے کینسر سے نکل کے جیمنائی میں. یہ ہر 3 سال بعد، ہر 5 سال بعد یہ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو 5 بروج کی قسمت کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، 5 بروج کی قسمت کھلنے جا رہی ہے. پیسہ، محبت اور کامیابیاں کن کو ملیں گی؟ تو وہ 5 خوش قسمت بروج میں پہلا برج ہے جناب ٹورس برج سور. ٹورس والوں کی اگر میں بات کروں تو اب کامیابیوں کا ایک نیا سلسلہ آپ کے نظر ہونے جا رہا ہے. کامیابیاں ملیں گی، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اگر میں ایک ہی کارڈ آپ کا نکالوں تو اب کاموں میں مدد آئے گی. پرانے کام بھی ہوں گے اور موجودہ کام بھی ایک بہت اچھا انرجی کے ساتھ جائیں گے. اب آپ اپنے بزنس اور کیریئر کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اب کے کیے گئے فیصلوں کا اثر آپ کے آنے والے وقت پر پڑنے جا رہا ہے. بہترین انرجی، بہترین کام اور پیسے کی بھرمار. اگر میں بات کروں آپ کی محبت کی تو محبت کی دنیا میں برج سور والوں کے لیے سیلیبریشن ہے. بالکل جناب، ایک نئے دور کا آغاز اور کامیابیاں اور سیلیبریشن کی انرجی برج سور کو ملے گی. اور اگر میں بات کروں تعلیمی معاملات سے متعلقہ تو طلباء طالبات نے اس کا بیلنس زبردست کر لینا ہے، کیونکہ اب آپ بہت کنٹرول کریں اپنے تعلیمی معاملات کو لے کر. اور اگر میں بات کروں آپ کے صحت کے متعلقہ معاملات کی تو صحت کے معاملات بھی بڑے زبردست قسم کے نظر آتے ہیں. ٹریولنگ بالکل کر سکتے ہیں، ٹریولنگ کی بھی بہت اچھی انرجی ہے. اگر آپ بیرون ملک سفر کریں یا اندرون ملک تو کہیں بھی آپ کی ٹریولنگ میں پریشانی کا سامنا نہیں پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کو اپنے کاموں میں رکاوٹ فیل ہو تو بالکل جناب 21 جون سے 22 جولائی 3 دن کا عمل ضرور کریے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ پڑھنا، کیونکہ آپ کا ارتھ سائن ہے. تو آپ کسی بھی فرائیڈے سے شروع کر لیں، فرائیڈے، سیچرڈے اور سنڈے 3 دن کا عمل کر لیں اور وائٹ کلر کا صدقہ دے دیں. بہترین انرجی اور بہترین فیصلے اور نیلم آف فیروزہ جیم سٹون آپ کی انرجی کو بوسٹ کریں گے. اور مون آپ کو اس وقت میں میسج دے رہا ہے، بڑی تصویر کی طرف دیکھیں، بڑا سوچیں اور بڑی کامیابیاں سمیٹیں. تو برج سور والوں کی بہترین انرجی ہے. اور دوسرا برج کون سا ہے آپ نے بتانا ہے، مگر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے جناب کینسر. بالکل جناب، جب جوپیٹر آلریڈی کینسر میں جا رہا ہے یا سن کی انرجی کینسر میں آ رہی ہے تو کینسر کے لیے بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. کینسیرین بلا شبہ ہمدرد، لوگوں کا خیال کرنے والے، برج سرطان والے ایک بہت پازیٹیو چینج لے کر آتے ہیں. ایک ہی کارڈ آپ کی انرجی سے متعلقہ اگر نکالا جائے تو کینسر والے کہیں اگر سٹک تھے، کام نہیں ہو رہے تھے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ اب ایک نئے آغاز کی طرف جائے گا. کچھ نیگیٹو انرجی کی وجہ سے، میجک ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کے کاموں میں ڈسٹربنس چل رہی تھی، لیکن آسمانی کونسل میں اب سٹارز کی بڑی زبردست قسم کی انرجی آپ کے لیے کامیابی کا ایک اندیہ ہوگا. جاب، بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو آپ ڈبل مائنڈڈ کسی بات کو لے کر، یہ کون سا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہ کاموں کی بھرمار اور زیادہ کام اور اپنے آپ سے جو فائٹ کر رہے تھے اس کے لیے اب نئی جدتیں اور نئے رستے بنیں گے. اب آپ اپنے جاب میں چینج لے کر آئیں گے اور بزنس میں نئے طریقے انٹروڈیوس کروائیں گے تو پیسے کی فراوانی ہونا شروع ہو جائے گی. محبت کی بات کروں تو محبت میں وہ کنسیرین جن کو دھوکہ مل رہا تھا اور چیٹنگ ہو رہی تھی، وہ دھوکہ کے معاملات اب ختم ہوں گے، مایوسی نکلنا شروع ہو جائے گی. لیکن پھر بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ اندھا اعتماد بالکل نہیں کرنا. ایجوکیشن کے معاملات میں بہت زبردست انرجی رہے گی.
हेल्थ के मामलात 50-50 हैं। सेहत वॉक ज़रूर करनी चाहिए आपको, और ट्रैवल को रूहानी सफ़र पेश आ सकता है इस वक्त में 21 जून से 22 जुलाई की एनर्जी में। और जनाब मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए पानी का सदका दें, क्योंकि आपका वाटर साइन ही बनता है। उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आजकल गर्मियों के दिन हैं, 3 दिन आप जो है पढ़ाई करें। पढ़ाई में आपको बता देता हूँ, ज़िक्र बता देता हूँ, या अल्लाह या रहमानु या रहीम 313 मरतबा पढ़ना, और उसके बाद पानी की 3 बोतलें ले लें, सादा बोतलें ले लें, और उनके ऊपर यही पढ़ाई करके किसी गरीब फ़कीर को चलते हुए सदका कर दें। पानी का सदका आपकी एनर्जी को बहुत अच्छा कर देगा। और मून आपको मैसेज दे रहा है कि आपके अज़म की जांच की जा रही है। तो 2 बुर्ज जो है टॉप के, अब तीसरा बुर्ज कौन सा है, वो है जनाब विर्गो बुर्ज सुमला। सही। तो विर्गो वालों की अगर एनर्जी की बात की जाए तो विर्गो के साथ क्या होने जा रहा है, तो कार्ड ऑफ दी 21 जून से 22 जुलाई दी वर्ल्ड की एनर्जी, तो आपके तमाम काम बेहतरीन तरीके से अब चलने जा रहे हैं। अगर मैं जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो एक पार्टनरशिप की एनर्जी है। अब एक नए दौर का एक ज़बरदस्त तरीन आगाज़ आपके कैरियर से मुतल्लिका, आपके पैसे से मुतल्लिका, और आपके कामों में एक बूस्ट से मुतल्लिका रहेगा। या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाक का विर्द करना बिल्कुल इस वक्त में आपके पैसे की एनर्जी को बूस्ट करेगा। 313 मरतबा पढ़ना है और 3 दिन पढ़ें इंशाल्लाह। इससे आपकी एनर्जी में भी बड़ी बेहतरी आएगी, कामयाबियाँ भी मिलेगी। और आगाज़ आपने वेडनेसडे से करना है, वेडनेसडे और थर्सडे और सैटरडे, जी परसों से आप इस बार ना हुआ तो आगे भी कर सकते हैं। फ्राइडे तक 3 दिन की पढ़ाई करनी है। और बिल्कुल जनाब मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में अब कामयाबियां मिलने जा रही हैं विर्गो को, जो अपनी मोहब्बत में परेशान थे, अपने रिलेशन में डिस्टर्ब थे, तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। एजुकेशन बेहतरीन रहेगी। अगर आप स्टडी के लिए बैरून मुल्क सफ़र की तरफ जाते हैं या सब्जेक्ट वाइज परेशान थे, तो ये सारे मामलात आपके तालीमी तलबा तालबात के बेहतरीन होने जा रहे हैं। हेल्थ की बेहतरीन एनर्जी भी मिलेगी और ट्रैवलिंग भी करेंगे आप, बेहतरीन ट्रैवलिंग की एनर्जी है। और जनाब यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए अमल है, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें, ये मून कह रहा है। और खुला ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना भी एनर्जी को बूस्ट करेगा। आसमानी काउंसिल में तीसरा बुर्ज जो कि बेहतरीन एनर्जी का मालिक नजर आता है वो है जनाब स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। वाटर साइन से मतलब आपकी एनर्जी और सन और जुपिटर बिल्कुल स्कॉर्पियन के लिए अब नई राहें मुतय्यन करने जा रहे हैं। अगर मैं एक ही कार्ड की बात करूं तो अब आप 2-3 काम भी ऐसे कर सकते हैं जिसमें से आपको ढेरों कामयाबियां मिलती हुई नजर आती हैं। जॉब, बिजनेस और कैरियर में बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप कैरियर में डिफ़िकल्ट मामलात, परेशानी के मामलात में मुब्तला थे, पैसे नहीं आ रहे थे, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी, तो अब बरवक्त फ़ैसले, सही फैसले आपके कैरियर में एक नई उमंग तरंग के साथ आपको पैसा दिलाने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे आप प्राइस बॉन्ड वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अचानक से पैसा भी आपके मुकद्दर का जीना बनने जाएगा। अगर मैं बात करूँ आप लोगों के मैरिज और रिलेशन की, तो बेहतरीन है एनर्जी रिलेशन में, और एजुकेशन के मामलात तलबा तालबात के बेहतरीन है। आपका फोकस बेहतरीन बैठना शुरू हो जाएगा। ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं अपनी फैमिली को लेकर। इमिग्रेशन के मामलात जिनके नहीं सॉल्व वो भी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए या जलजल आली वाली कराम 313 मरतबा 3 दिन के अमल से आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। मून आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। और जनाब आसमानी बरूज में जो बेहतरीन खुशकिस्मत बरूज, 5वां बरूज जिसके मुकद्दर के दरवाज़े और दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त जिनके ऊपर आएगा वो है जनाब पाइसिस बुर्ज हौत। जुपिटर की डायरेक्ट एनर्जी आपके लिए अब कैरियर वाइज एक नए दौर के आगाज़ के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में नई जिद्दतें, मोहब्बत में कामयाबी और बेहतरीन, अगर आपके कर्ज़े के मामलात हैं तो बेहतरीन पैसे की मदद लेकर आया है। एक ही कार्ड की बात करूं तो द चैरिट का कार्ड आपके तमाम पैसे, रूहानी मामलात, एवरीथिंग एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। पाइसिस बुर्ज हौत पल होंगी। जॉब, बिजनेस और कैरियर में
ख्वाहिशें पूरा करने का वक्त है। अब आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, बिल्कुल जनाब, जो आप सोच रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल पाइसिस वालों के पैसे की ख्वाहिशें, एनर्जी और कैरियर, और बिल्कुल अगर आपका है तो आप खुश हो जाएं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको आसानियां दें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में जज्बाती नजर आते हैं, बिल्कुल अच्छी एनर्जी है जनाब। और यहाँ पे बात करें एजुकेशन की, तालीमी मामलात पे आपको फोकस करना पड़ेगा बिल्कुल। और नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आप सूरह फलक और सूरह नास, तुलबा तलबात 3 मरतबा पानी पे दम करके 3 दिन पिए, एनर्जी बेहतर हो जाएगी। हेल्थ की बात करूँ तो बेहतरीन है सेहत के मामलात, पानी का ज़्यादा पीना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। ट्रैवलिंग की बात करें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपने कामों की रुकावटों की वजह से परेशान हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 मरतबा 3 दिन की पढ़ाई आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी, कामयाबियां लेकर आएगी। और मून मैसेज दे रहा है कि एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम भी होने जा रहा है। तो मुंतकल बरूज में ये 5 बरूज की ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त शुरू हो चुका है, बल्कि तैयारी कर लें कामयाबियों की। अगर आप लोग अपने कामों की वजह से या अपने ज़ोडिक साइन की एनर्जी की वजह से डिस्टर्ब होते हैं तो मुख्तलिफ जेमस्टोन का यूज़ करके, मुख्तलिफ पढ़ाइयों का यूज़ करके आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों का कि हमारे बरूज में तो बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, हाँ। और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, अगर होता क्यों नहीं है, हाँ। हमारे मामला ऐसे हो क्यों नहीं पाते। तो मैं एक बात बताऊँगा यहाँ पे, एक अहम बात है कि जब किसी बंदे के ऊपर नेगेटिव एनर्जी जैसे कि नजरे बद, बुग़्ज़, हसद और कीना की वजह से जादू के असरात या नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ता है, ऑरा डिस्टर्ब होता है, तो जितनी भी बेहतरीन आप नाम रख लें, जितना भी बेहतरीन आपके बरूज की एनर्जी हो, वो आपके काम उस एनर्जी को मैच नहीं कर रहे होते। तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को बेहतर कर लेंगे तो यही जो बरूज है, यही वो कामयाबियाँ दे के, क्योंकि हर बुर्ज जो अपनी शख्सियत में एक ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी लेकर आता है तो वो बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में मामलात होते हैं। तो हसद और जादू और नजर बद का असर ऊपर के दर्जे की बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत उसका तोड़ भी तो आप बताते हैं। बिल्कुल जनाब, उसका तोड़ वज़ाइफ से होता है, कुरान पाक के सदकात से होता है। कुरान पाक पढ़ा जाता है, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी और बिल्कुल आयत करीमा का विर्द करना, तो उससे नेगेटिविटी दूर होती है। और लाजमी नहीं कि आपके नजर बद जादू, आपके अमाल का असर भी सियारों की नहुस्ते सियारगान पे पड़ता है। अगर आप बुरे काम करते जाओ, अल्लाह को नाराज़ करते जाओ, माँ बाप की नाफरमानी करते जाओ और कहोगे कि हमारे सियारे सब कुछ अच्छा अच्छा हमें बता दें या कर दें, तो अल्लाह की नाराज़गी जो है वो फिर असरअंदाज होती है। हाँ, मतलब तो उसका भी ख्याल करना पड़ता है, को भी सही रखना होगा, बिल्कुल, है ना? जिससे अल्लाह की हकूक़ुल इबाद को बेहतर करना ही आपके मामलात में एक नई तरक्की लेकर आता है, कामयाबियाँ लेकर आता है। अच्छा दाऊद जी, ये सेहत के हवाले से किन बुर्जों को खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल जनाब, सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एरीज बुर्ज हमल वालों को गुस्सा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं बुर्ज सौर वालों को, इनको एक मतवाजन ज़िंदगी गुजारने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। कंसेरियन वाले जो है ओवर थिंकिंग से बचेंगे तो इनके सेहत के मामलात बेहतर हो सकते हैं या होते भी हैं। और अगर लियो वालों की बात करूं तो जज्बातियत और गुस्सा और लड़ाई झगड़ा इनके इमोशंस को ख़राब करता है। विर्गो वाले जो है किसी बात को जब दिल पर लेकर बैठते हैं तो इनके कामों में डिस्टर्बेंस हो जाती है। लिब्रा वाले अंधा एतमाद करने के बाद मामलात ख़राब कर बैठते हैं और मोहब्बत करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, पैसे वगैरह किसी को दे दें या किसी के ऊपर अंधा एतमाद करके उनके लिए नेकी कर दें तो वही बंदा उनके ख़िलाफ़ हो जाता है। स्कॉर्पियन होते तो बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़बरदस्त, लेकिन मार्स की एनर्जी की वजह से इनके एग्रेशन, इनके जज्बात कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो बाद का मुँह से ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। इसका असर इनकी सेहत के ऊपर पड़ता है। सेजिटेरियस बुर्ज कौस वालों को अपनी रूहानियत से अपनी सेहत को बेहतर करना चाहिए, उससे इनकी सेहत बेहतर होती है। इसलिए ये अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा, जैसे ही नेगेटिव होते हैं तो इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। और कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी वालों की अगर मैं बात करूं तो कैप्रिकॉन वाले नजरे बद, जादू, हसद और बुग़्ज़ और कीना की वजह से इनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी का असर पड़ता है उससे इनके सेहत के मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं इनको कहूँगा कि ये पानी के ऊपर सूरह फलक और सूरह नास
लाजमी पढ़ के, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न जोहल है, तो इनके कामों में डिस्टर्बेंस आती है। एक्वेरियस वालों की एक बड़ी अच्छी बात है कि जियो और जीने 2 पे चलते हैं, लेकिन अक्सर लोग इनको डिस्टर्ब करते हैं इस हवाले से कि इनके मामलात इतने ज़बरदस्त होते हैं, इनकी जेलसी और हसद की वजह से इनकी ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ता है। और पाइसिस बुर्ज हौत वाले ओवर थिंकिंग, क्योंकि डबल फिश है, अच्छा भी सोचते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं, तो उसका असर इनकी सेहत पे पड़ता है, इसलिए खास तौर पे ये डिसीजन मेकिंग में बड़े कमज़ोर होते हैं, तो डबल माइंडेड होते हैं। तो इनको इन हवाले से काम करना चाहिए, क्या इन हवाले से काम करना चाहिए कि जो कुछ भी होता जाए अपने दिमाग, अपने दिल पे किसी बात का असर ना ले, और जिस डायरेक्शन पे ले उसी डायरेक्शन पे, क्योंकि जैसे ही ये एक शोबे की पीक पे पहुंचते हैं तो उसकी नेगेटिव चीज़ें भी उनके माइंड में चल रही होती हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो वैसे क्या होगा। तो ये चीज़ इनकी एनर्जी और इनकी सेहत के ऊपर असरअंदाज होती है। तो इसको क्योंकि ड्यूल पर्सनैलिटी बन जाती है ना इनकी, तो उस डबल माइंडेड इसीलिए पाइसिस को कहा जाता है ना कि फिश का साइन भी ऐसा ही है। ठीक है, इस महीने में क्या एहतियात करनी चाहिए किन स्टार्स को? बिल्कुल जनाब, 12 के 12 ज़ोडिक साइन में मैं एहतियात क्या नहीं करना, डायरेक्ट रीडिंग निकालते हैं कि जी 12 के 12 बुरूज को इस महीने में क्या नहीं करना और क्या करना है। तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल वालों को क्या नहीं करना, तो बुर्ज हमल वालों को हर चीज़ को ख़त्म नहीं करना और चीज़ों की प्लानिंग करके ही कामों में तवज्जो देनी, आगे बढ़ना है एरिस को। और बुर्ज सौर वालों को क्या नहीं करना, बुर्ज सौर वालों को अपने बड़ों और बुजुर्गों की बात को मान के चलना है। और जमनाई वालों को इस महीने में क्या नहीं करना, लोगों की बातों पे अंधा एतमाद नहीं करना, खुद भी अपनी आंख कान खुले रखने हैं, जो फैसले हैं उनको अपने तरीके से लेकर चलना है। और कैंसर वालों को इस महीने में क्या नहीं करना, कैंसर वालों के लिए बेहतरीन वक्त है, वक्त का ज़िया नहीं करना, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अब दिन रात एक करना है। और लियो वालों को इस महीने में क्या नहीं करना, जज्बाती नहीं होना, और गाड़ी वगैरह चलाएं तो एहतियात से चलाएं, जज्बात में आके आप अपने रिलेशन और अपने पैसे को ख़राब ना करिएगा। और विर्गो वालों को क्या नहीं करना, तो विर्गो वालों को सुस्ती काहली से बचना है, मामलात के डिले होने की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, नेगेटिव नहीं होना। और बिल्कुल जनाब यहाँ पे बात करूँ तो मीज़ान वालों को क्या नहीं करना, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है, कामयाबियाँ आएंगी, वक्त का ज़िया नहीं करना। और स्कॉर्पियो बड़ों और बुजुर्गों की बात को मान के चलना है। और सेजिटेरियस सेलिब्रेशन करना है, कामयाबियां को जितना एंजॉय करेंगे उतना अल्लाह नवाजेगा। और कैप्रिकॉर्न वालों को क्या नहीं करना, कोई दोस्त आपकी मदद करे तो उसको अच्छे तरीके से रिसीव करना। और एक्वेरियस वालों को क्या नहीं करना, इस मदद को क्योंकि एनर्जी बेहतरीन आ रही है, इस मदद को सही अवेल करके आने वाले वक्त की अभी से प्लानिंग कर लीजिएगा। और पाइसिस बुर्ज हौत वालों के लिए एक अच्छा आगाज़ है, तो आपको देर से नहीं उठना, अर्ली उठेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे उठाएंगे। इसलिए आपको एक ही मशवरा है कि जब आपने ज़्यादा कामयाबी पाइसिस वालों में तो सुबह जल्दी उठें, इससे इसको आप उठती है ना, कहीं और नहीं ना उठते, तो उससे फ़ायदा होगा। इससे भी जल्दी ठीक हो गया। अच्छा, हम हमेशा, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, पहले जो हमारे घर में अखबार आता था उसके अंदर एक खाना होता था ना, एक छोटा सा, उसमें हर बुर्ज का ना 2 लाइनें 3 लाइनें लिखी होती थी, और वो हम पढ़ के अपना सारा दिन पर हम फील करते रहते थे कि सारा दिन हो भी जाता था। यस, वो क्यों होता था? हाँ, क्यों? देखें, एनर्जी है ना। मैं आपको एक आज बड़ी नहीं बात बड़ी जबरदस्त किस्म की बात बताऊं, जो इंसान पॉजिटिव सोचते हैं उनका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी है और एक पानी का गिलास लेते हैं और उसके ऊपर आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं, तो उन सूरतों का असर उन पानी में जाना शुरू हो जाता है कि मेरी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो। और जब वो पानी पीते हैं तो आपके अंदर का ऑरा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आपकी जो सोच होती है, आप उसके टेस्ट करवाएंगे ना पानी के, तो पता चलेगा कि उसमें कुरानी सूरतों का या आयात का असर नज़र आता है, उसकी तासीर बदल जाती है। तो सोच से आपके मामलात और आपकी तासीर बदलती है। आप जितना पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे उतना ही आपका ऑरा मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो नेगेटिविटी जो है वो आपके काम भी खराब करती है। नेगेटिव सोचना और नेगेटिव लोगों के पास बैठना, ये भी एक बड़ा पूरा असर होता है। जादूज़दा और नेगेटिव लोग जिन्होंने बातें सड़ी हुई करनी है, उससे आपकी
پرسنالٹی ڈاؤن ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کے پاس کچھ دن بیٹھ کے دیکھیں, آپ کی زندگی میں ایک ترقی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو کہ نیگیٹو نہیں ہوتے, پازیٹیو سوچتے ہیں, آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, کیریئر کی بات کرتے ہیں, فیوچر کی بات کرتے ہیں, جن کے نزدیک رشتہ داروں کے مسئلے نہیں ہیں بلکہ اپنی زندگی مسئلہ ہے کہ میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے, ان کے پاس اپنی کچھ دنوں کے لیے زندگی گزاریں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب روحانی لوگوں کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ کو آپ کی لرننگ ہوتی ہے. بہت شکریہ جی داؤد جی آپ کے آنے کے لیے, آپ نے ٹائم نکالے, اتنی مفید باتیں کی.